بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسی ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اس نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں جو اپنا آج کے سبق کا آغاز۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو چلیں جی چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وامرأته، واو میم زبر وام، را زبر را، حمزہ زبر آ، وامرأ، تا پیش تو، ہا الٹا پیش ہو، وامرأته، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ تو کا سائن ہے تو ہمیں یہاں پر رکنا ہے، وقف کرنا ہے۔ جب بھی وقف کرنا ہے ہمیں ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے ہا کو کیا کیا؟ ساکن کر دیا۔ اب کیسے پڑھیں گی؟ وامرأتہ، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، وامرأتہ۔ یہاں پر اکثر ہماری یہ غلطی ہوتی ہے، ہم پڑھ رہی ہوتی ہیں وام، اس میم پر ہم رکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میم پر یعنی کہ غنہ ہو رہا ہے تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے؟ رکنا نہیں ہے۔ وامرأتہ، دوسری غلطی یہ ہوتی ہے ہماری حمزہ کو کھینچنے کی غلطی، تو یہ والی غلطی بھی ہمیں نہیں کرنی، حمزہ کو ہمیں نہیں کھینچنا کیونکہ را اور حمزہ کیا ہیں؟ دونوں متحرک ہیں۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ وامرأتہ، تا کو ہا کے ساتھ ملاتے ہوئے ہا کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے، ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر ہا پڑھ رہی ہیں۔ وامرأتہ ہا کو ہمیں میم کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں غنہ کن کن حروف پر کرنا ہے اس بات کو آپ لوگوں نے آج سمجھنا ہے۔ ہمیں غنہ کن کن حروف پر کرنا ہے اور غنے کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ غنہ ہمیں ہمیشہ میم مشدد اور نون مشدد پر کرنا ہے۔ کس پر کرنا ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد پر۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ میم مشدد۔ میم مشدد کیا ہوتا ہے؟ جب میم کے اوپر یہ 3 چھوٹا ڈبلیو بناؤ، یہ میم مشدد ہو گیا۔ اگر یہاں پر نون مشدد ہو یعنی کہ نون کے اوپر ایسی تشدید ہو تو وہاں پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر میم کا قاعدہ ہو رہا ہے، میم مشدد ہے تو اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ میم کا غنہ ہمیں کیسے ادا کرنا ہے۔ دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا دینا ہے اور ہمیں 2 سیکنڈ تک بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ ماں کو ہمیں کھینچنا ہے الف کی مقدار کے برابر کیونکہ یہ حروف مد ہے۔ یہ حروف مد کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسے 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر لمبا کرنا ہے۔ لا تل نہیں پڑھنا۔ اب لام کو بالکل بھی نہیں کھینچنا کیونکہ لام متحرک ہے۔ تا کو ہمیں لام کے ساتھ ملانا ہے۔ حمالتل، ہا زبر ہا، طا زبر طا، ہا طا، با زیر بی، ہا طا بی۔ وقف کریں گی، آیت ختم ہو رہی ہے، با کو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ اب یہاں پر غور سے دیکھیے گا،
हातब, हातब। हा की अदायगी को हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहला हा की अदायगी को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। आगे नेक्स्ट त्वा, यहाँ पर त्वा की अदायगी को भी हमें कंप्लीट करना है। पीछे देखें, यहाँ पर ता है और यहाँ पर त्वा है, तो कैसे पढ़ना है, हम्मालतल हतब, तल ता की आवाज आएगी, यहाँ पर त्वा की आवाज को वाज़ेह करना है, हम्मालतल हतब। अब आयत यहाँ पे खत्म हो रही है, बा को साकिन कर दिया। अब साकिन हालत में कुतुबु जद, जब भी कुतुबु जद में से कोई हरफ साकिन हो जाए, काफ तो बा जीम और दाल। अब यहाँ पे क्या साकिन हो रहा है, बा साकिन हो रहा है, ठीक है, ये बा साकिन हो गया। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इस वर्ड्स को हिलाकर पढ़ना है, कलकला करना है। यानी कि कलकला क्या होता है, वर्ड्स को हिलाकर पढ़ना। कैसे पढ़ना है, हातब ब, ठीक है, ऐसे आवाज आनी चाहिए जैसे वर्ड्स हिल रहा हो, हातब, हातब। ऐसे नहीं पढ़ना हातब, हातब, हिलाए बगैर हमें नहीं पढ़ना। हम्मालतल हतब। चले जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी सही तरीके के साथ। एक मरतबा फिर दोबारा शुरू से आयत पढ़ते हैं। वम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा। यहाँ पर देखें, फा याजेर फी हरूफे मद, जिम याजेर जी हरूफे मद, दाल मुतहर्रिक हा अलिफ ज़बर हा भी हरूफे मद। तो अब क्या करना है, हमें इसे भी खींचना है, इसे भी और इसे भी। बीच में किसको नहीं खींचना, सिर्फ और सिर्फ दाल को नहीं खींचना। हमारी अक्सर गलती होती है, फी जिदिहा, फी जिदिहा, जीम को नहीं खींचती, क्या करती हैं, या को खत्म कर देती हैं। या को हमें खत्म नहीं करना, इसे हमें खींचना है एक अलिफ की मिकदार के बराबर। अब कैसे पढ़ना है, फी जीदिहा, फी जीदिहा, हा पढ़ना है, हा नहीं पढ़ना है इसको, फी जीदिहा हबलुम, हबलुम, हबलुम। अब यहाँ पर देखें, बा आ गया। अब यहाँ पर बा क्या है, बा साकिन है, जैसा कि यहाँ पर हमने बा को साकिन किया था, क्या किया था, यहाँ पर कलकला किया था। अब यहाँ पर भी हमें सेम वही कायदा अप्लाई करना है, हब, बा की आवाज को हिलाना है, हबलुम, हबलुम। याद रखें कि हमें कलकला करना होता है। कलकला क्या होता है, हिलाकर पढ़ना। किन किन हरूफ पर कलकला किया जाता है, कुतुबु जद पर, जब भी वो साकिन हो। जबर जेर पेश की हालत में हमें नहीं करना, जैसा कि यहाँ पर देखें, ये जीम है, कुतुबु जद जीम है, लेकिन इसके नीचे जेर की हरकत है। यहाँ पर बा क्या है, साकिन। जब भी कोई हर्फ साकिन होगा तब हमने वहां पर कलकला करना है। अब यहाँ पर भी जेर की हरकत थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, आयत खत्म हो रही थी, तो हमने बा को साकिन किया क्योंकि आयत खत्म हो रही है, तो इस हालत में हमने वहां पर कलकला किया। चलो जी आगे नेक्स्ट, लाम को मीम के साथ मिलाते हुए हमें क्या करना है, इदगाम करना है। बस इसमें हमें ज्यादा भी नहीं सीखना, क्योंकि जब हम आगे आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह हमें तमाम कवायद की जो है समझ आती जाएगी। आज के सबक में सिर्फ और हमने किसको याद करना है, इसको, कलकला के बारे को। चले आगे जी नेक्स्ट, हबलुम, लाम को मीम के साथ मिलाते हुए हमें यहाँ पर गुन्ना करना है। जहां पर भी गुन्ना होगा मैं वहां पर क्या करूंगी, एक सर्कल का निशान लगा दूंगी। हबलुम मीम मसद, हबलुम मीम मसद। मीम को हमें मीम के साथ मिलाना है, नून के साथ नहीं मिलाना। जब भी साकिन हर्फ और मुशद्दद हर्फ इकट्ठे आ जाए, यहाँ पर ये साकिन आ गया, यहाँ पर ये साकिन आ गया और साथ ही मुशद्दद हर्फ आ गया, तो हमें क्या करना है, हमेशा जब भी साकिन हर्फ और मुशद्दद हर्फ इकट्ठे आ जाएं, साकिन को छोड़कर मुशद्दद के साथ मिलाना है। अब इस मीम को हमें इसके साथ मिलाना है, हबलुम मीम मसद, मीम मसद। अब यहाँ पर देखें आयत खत्म हो रही है, फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे दाल को साकिन, दाल को हमने साकिन कर दिया, यहाँ पे दाल साकिन हुई, फिर से यहाँ पर कौन सा कायदा होगा, कलकला, मसद, मसद। ठीक है, आज के सबक में आपने क्या याद किया, कलकला के बारे में सीखा।
कलकला क्या होता है? वर्ड्स को हिलाकर पढ़ना। कलकला किन हरूफ पर किया जाता है? कुतुबु जद में से जब भी कोई हर्फ साकिन हो। दाल साकिन नहीं था, लेकिन हमने इसको साकिन किया क्योंकि यहाँ पे आयत खत्म हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? कलकला होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है आज कलकले के बारे में सही तरीके से पता चल गया होगा। तो आज का मेरा सवाल ये है कि कलकला के लुग़वी मायने क्या हैं और कलकला किन हरूफ पर किया जाता है? ये आप लोगों ने मुझे जवाब देना है इसी जो आप सबक याद कर रही हैं इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, अब एक मरतबा इस आयत को पढ़ देते हैं। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सबक की सही तरीके के साथ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नूरानी कायदे की तरफ। तो पिछले सबक में हमने क्या सीखा था? हरूफे मद के बारे में कि हरूफे मद कितने हैं और उनकी अदायगी कैसे करनी है। तो आज हम प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे। ता अलिफ ज़बर ता, बा अलिफ ज़बर बा, ताबा, ताबा, ज़ाक़ा, ज़ाक़ा। अदायगी हर एक वर्ड्स की कंप्लीट होनी चाहिए। क़ाला, क़ाला, काना, काना, माज़ा, माज़ा, ऊतू, ऊतू। हम क्यों खींच रहे हैं यहाँ पर लफ्जों को? ये आपने मुझे कमेंट्स के अंदर आकर जवाब देना है कि हम इस सबक को इतना क्यों खींच रहे हैं। तूबू, तूबू, क़ूलू, क़ूलू, कूनू, मूतू, ताबू, ख़ाफ़ू, ज़ाक़ू, क़ामू, कानू, बाला। तो मेरा क्वेश्चन ये है इस सबक के अंदर कि यहाँ पर क्या किया हमने? हर वर्ड्स को खींचा, लेकिन यहाँ पर मैंने कैसे पढ़ा? बाला। यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों नहीं पढ़ा? बाला, बाला। तो आज के सबक में मैंने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं? 3 क्वेश्चन। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मुझे जो है इसी वीडियो के अंदर आकर कमेंट्स में बताना है कि मैंने कौन कौन से जो है आप लोगों से क्वेश्चंस किए हैं। जज़ाकिल्लाहु खैर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सबक की सही तरीके के साथ समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की ना समझ आए कमेंट्स के अंदर आकर पूछ सकती हैं। व्हाट्सएप वाली जो है व्हाट्सएप पर पूछ सकती हैं। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखें। इंशाल्लाह कल एक न्यू सबक के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।